Okay, guys, hi. Very good evening. My name is Lieutenant Commander Nikhil Kumar Chandrakala. For those of you who know me or who do not know me, who am I? Or who I am, sorry, that's the right way to speak. Who I am. I have served as a GTO, variably, invariably, fortunately, unfortunately. I have been the youngest group testing officer to have served in the history of the Indian Armed Forces since 1947 amongst tri-services. Not only have I been the youngest GTO, but also I have been the youngest ever SSB assessors if you were to pull in all the interviewing officers and the psychologists also together. So I have been the youngest ever assessor to have sat down in the board in the history since 1947. It's a very bold statement that I'm making, but everybody and anybody who has served in any board amongst all 21 boards of our country, Army, Navy, Air Force, is going to definitely 2000% agree with this statement, whatever I have said. Now, this is my brand, Integrated SSB Virtuosos. We've been coaching since 4th July 2021. Our selection rate is more than 50% or almost 50% because हर एक बैच से 10-15 बच्चे आते हैं तो 6-7 रिकमेंड होते हैं. But overall, if you see the number is, we have had 190 officers. 190 of our students are either serving or they are undergoing training. To an extent such that the students are still in touch with me after getting commissioned. उनकी क्या पोस्टिंग आई, वो मरून हुए, उन्होंने मार्कोस ऑप्ट किया, उनको फाइटर्स मिल गए, या फिर कोई ट्रेनिंग कर रहा है, सर मैं टर्म ब्रेक में घर वापस आया हूँ, सर मेरी पीओपी पे आना. दिस हैज बीन हैपनिंग सिंस 2021. वी हैव बिल्ट अ कम्युनिटी व्हिच वी कॉल एज इंटीग्रेटेड एसएसबी वर्चुओसोस कम्युनिटी. There's a reason why I call this ISV, because ISV is the ship and the squadron that I commanded. Immediate support vessels. In your own time, you can research. Recording of this will be shared on YouTube. You can see there. Okay. This is CS Joint Services Academy. CS stands Chandrakala Sharma. That's my mother's name, Chandrakala. Joint Services Academy Private Limited. XYZ Academy. Academies, no. This is a brand name. Integrated SSB Virtuos is the name of the brand. This is the academy. CS Joint Services Academy. Now, we are all DIPR certified ex-SSB assessors. We carry out our SSB training cum assessment on something which is called as virtual training experience. It is India's first virtual GTO ground. We say with a punch, we take a lot of pride in saying the GTO ground before the GTO ground. It is a complete full-fledged GTO ground, which I'm going to show it to you in this webinar. Okay. Now, okay, this is what we are going to cover today. We are going to talk about what is this computerized stage 1 selection system, what is this objective personality assessment measure, officer personality assessment module, objective personality assessment measure. And I'll show you some sample questions, how to attempt, how to prepare, what are the do's and don'ts, and what is this introduction, what is this VTSTM. Okay, remember this, we carry out 10 days का SSB hackathon. एंड उसके अंदर ये सारी चीजें होगी. हैकेथॉन से सारे मिस चले जाएंगे. मेरा क्या मिथ है, आई एग्जैक्टली नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. ऑल आवर स्टूडेंट्स हैव बीन डूइंग दिस. रणधीर इज माय स्टूडेंट एंड यू कैन सी फीडबैक एंड वट एवर थिंग्स, जो कुछ भी है मेरे स्टूडेंट्स का, यू कैन सी चेक एनीवेयर इन द कम्युनिटी. किससे भी बात करके देख लो. लोग जाके अपने प्लस वाले चेस्ट नंबर्स पे जाके लिख के आते हैं हैशटैग ISV, कर्म वही करो जो करना ही फल लगे, क्योंकि कर्म ही धर्म. ठीक है. गोयल की रट्टा मारने से और एक फिक्स टेम्पलेट्स को लिखने से कि ये पिक्चर आए तो ऐसे लिखेंगे, ये नेगेटिव पिक्चर है, ये पॉजिटिव पिक्चर है. पिक्चर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तुम्हारी सोच पॉजिटिव या नेगेटिव होती है. फॉर ऑल दोज हु डू नॉट नो दिस थिंग अबाउट मी, आल्सो हैव अ मास्टर्स इन साइकोलॉजी. These are the instructors, Commodore Pankaj Singh, that's me, and we also have a psychologist who's ex-17 SSB. Commodore Pankaj Singh was ex-board president of 12 SSB. Also, he was commissioning president of SSB Kolkata, of which I was the commissioning crew. Me. And we also have a psychologist on board who is ex-17 SSB. We don't have we have plethora of assessors in case if the number of students in the batches increase, or if you want more assessments to be done or to be carried out, then हमारे पास में assessors की कमी नहीं है. All are qualified ex-SSB assessors. ऐसा कोई भी नहीं है हमारे साथ में कि हाँ तुमने बेटा पुरानी कभी SSB दी थी तो आ जाओ हमारे साथ जुड़ जाओ, बच्चे पढ़ाना स्टार्ट कर दो. ये सारे काम हम करते नहीं. One sec. Just want to put this on charge.
Top is running out of battery. Okay, these are our credentials. All this thing can be seen on the website. This is a website. Okay. Now, okay, what is this CSSS computerized stage 1 selection system? देखो, जिन लोग कोई रिपीटर्स है, जिन लोगों ने पुरानी एसएसबी दी है, उनके पास ओआईआर के टेक्स्ट बुकलेट्स आए होंगे। उन्होंने एक आंसर शीट पे उसके आंसर्स लिखे होंगे और वहां बोला जाता था तुम्हें जहां पे भी कोई भी रफ वर्क करना है तो उस आंसर शीट पे ही कर दो। फिर उसके बाद में एक असेसमेंट टीम होती है जो उसको उठाती है, सेलर्स, जवान्स या एयरमैन्स उसको उठाते, उसके आंसर्स को चेक करते हैं, उसके हिसाब से स्टेटिस्टिकली देयर आर सम मैथमेटिक्स बिहाइंड टू एक्चुअली फिगर आउट कि तुम्हारा ओआईआर क्या होगा। ओआईआर इज 1 to 5, 1 being the highest, 5 being the lowest, and there is a proper statistical analysis as per the age group, as per gender, as per plethora of things we calculate OIR। तो ये मैन्युअली करना है। इसके जगह पे ऑल दोज ऑफ यू हु कम फ्रॉम एन आईटी बैकग्राउंड और प्रॉब्ली वर्किंग इन सम आईटी कंपनीज, प्रॉब्ली पीपल हु अंडरस्टैंड यूसेज ऑफ computer or technology to do automate certain work that you have been doing manually, that is exactly what is CSSS। हमने OIR का कंप्यूटेशन को ऑटोमेट कर दिया, ठीक है। दैट इज बेसिकली योर कंप्यूटराइज्ड स्टेज 1 सिलेक्शन सिस्टम। पेन पेपर वाला काम खत्म, ठीक है। पेड़ काट के पेपर बना रहे हो, धरती बचाओ, सस्टेनेबिलिटी वाली बात है, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करो। सिंपल भाषा में समझाऊंगा तो ये है CSSS, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज ऐड कर दी है, डेटा ड्रिवन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। व्हाट इज दिस? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए समझना, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, वी हैव दिस कॉग्निटिव कोर, योर मेंटल एबिलिटी। अब ये सारे इसके तूफानी नाम है, लिंग्विस्टिक एबिलिटी, वर्किंग मेमोरी, स्पेस परसेप्शन, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, दिस दैट ये वो। मैं तुमको ये बोलूंगा कि वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ स्टैंडर्डाइज बुक्स छपते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पब्लिशर्स है, अरिहंत, दिस दैट ये वो, कुछ भी उठा लो और उसको प्रैक्टिस कर लो, दैट इटसेल्फ बिकम्स योर ओआईआर। ये स्टेटमेंट इज कमिंग फ्रॉम समबडी हु हैज मेड, ठीक है। म्यूट दिस गाय हु स्पीक्स। हाँ, इस पैसे मांगे पिज्जा मंगाऊंगा। Yes, sir, muting them. guys please have some heart, there is a formal session going on। तुम्हारे बैकग्राउंड में अगर कोई नॉइज है तो प्लीज उसको अपने आप को म्यूट कर लो। एंड इफ यू आर लिटिल बिट सेंसिबल अबाउट दिस वेबिनार दैट आई हैव टेकन आउट सो मच ऑफ टाइम, आई एम टेलिंग दिस टू यू ऑन योर फेस दैट आई हैड अ टूथ एक्सट्रैक्शन yesterday and still I have taken this webinar। switch on your cameras and show me who's there on the call। there's nothing to hide, there's nothing to hide, ठीक है। दिखाओ कौन है, क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हें, चाहे तुम खा रहे हो, पी रहे हो, बैठे हो, कहीं ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, कहीं जा रहे हो, बस में बैठे हो, किसी टैक्सी में बैठे हो, ऑटो में बैठे हो, सीडीएस देके घर जा रहे हो, अपने ऑफिस से घर जा रहे हो, अपने दोस्तों के साथ कहीं बैठे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये एक फ्री वेबिनार है, मैंने तुम्हारे लिए समय निकाला है। So these key mental Jansi, please mute yourself. these key mental abilities is basically perception of basically patterns, ठीक है। अब इसमें हजारों चीजें कुछ भी जोड़ लो तुम, 5-6 वर्ड्स में तुमको सुनाऊंगा, उसमें बोलूंगा तुमने क्या नहीं सुना उसको सिलेक्ट करो स्क्रीन पे, इट्स दैट सिंपल। तो एक रूल लगाओ अपनी लाइफ में, एसएसबी प्रिपरेशन को ही नहीं लेकर के बट ऑल्सो अपने जीवन में ये रूल लगाओ जो मैं अपने हर किसी स्टूडेंट को बोलता हूँ, KISS, कीप इट simple, stupid। This rule is likely to make your path free of obstacles or it is going to tell you how to overcome the obstacles। ये रूल लगाओ सिंपल। ये बड़े बड़े हाइफंडो नाम पे मत जाओ, क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, अच्छा ये करना है, ये करना है। अब OPAM, ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी असेसमेंट मेजर क्या है? अगेन लाइक आई टोल्ड यू, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इज अ मेथड टू इंटरप्रेट पर्सनालिटी। जैसे there are various other standardized methods developed by Harvard psychologist and this psychologist and that psychologist, which is applicable till date for the entire globe, entire humanity, any nationality। If you know about it, good. If you don't know about it, research। So I'll tell you आगे क्या है। Okay, so what are this
We are looking at some speed and accuracy. We are checking your reaction time. देखो टाइम टेस्ट है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम तो तुमको देंगे नहीं, तो जैसे ही मैं टाइम बाउंडेशन लाऊंगा और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को डालूंगा तो ये चीजें स्ट्रेस जनरेट करती है। और ये है एक इंसान, इसके अराउंड है ये कवच पर्सनालिटी, अपनी कोई रियल सेल्फ दिखाता नहीं है। तो जैसे ही स्ट्रेस जनरेट होगा तो ये शेल क्रैक होगा और तुम्हारा रियल सेल्फ बाहर आएगा। इसीलिए ये टाइम टेस्ट है। एंड देर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच दे ब्रीफ यू, वहां सामने के सामने बताते हैं। इसके लिए तुमको किसी एकेडमी में, कोई यूट्यूब पे, कोई इंस्टाग्राम पे जाने की जरूरत नहीं है। 1960, 1970, 1980, 1990, आज 2026 है, या जब मैंने एसएसबी दी थी 2009, 2010, instructions have remained the same. In fact, hear this out again, the statement is as true as sun rises in the east and sun sets in the west. When somebody becomes an assessor, कोई ऑफिसर जीटीओ बनता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर बनता है, साइकोलॉजिस्ट बनता है, ये कोर्स करने के लिए जब डीआईपीआर जाता है तो ये टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए, टास्क को कंडक्ट करने के लिए उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना होता है ना। वहां पे जो कैंडिडेट्स आते हैं, दीज इंस्ट्रक्शंस आर वर्बैटिम टू दीज ऑफिसर्स। इसका मतलब है ये स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शंस उनको लर्न करने बोलते हैं, बाय हार्ट करने बोलते हैं, जो तुम लोग बोलते हो कोलोक्वियल इंग्लिश में, दैट्स वर्बैटिम। So they learn this instructions so that all interviewing officers, all psychologists, and all GTOs are speaking the same language, whether it is AFSB or NSB or any army ka board. Break your myths. You don't even need to visit any YouTube channel or any Instagram. फौज तब भी काम कर रही थी, कल भी काम करेगी, जब लॉकडाउन था तब भी काम कर रही थी, कल भी करेगी, परसों भी कर रही थी, 1947 से करते आ रही है। एक यूट्यूब डिसाइड नहीं कर सकता कि क्या इंस्ट्रक्शंस और क्या नहीं है। ब्रेक ऑल दीज मिथ्स, बी एब्सोल्युटली क्लीन एंड क्लियर। सामने एक आदेश आने वाला है, उसको फॉलो करना है, सिंपल, पे अटेंशन, दैट्स इट। हालांकि मेरी क्लास में आओगे तो आई टेल यू व्हाट दीज इंस्ट्रक्शंस आर, क्या होता है, कैसे कंडक्ट करते हैं, ऑल दीज डिटेल्स आई कैन गो इन दिस वेबिनार, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम्हारी टेस्ट होने वाली है। ये सारी चीजें हम वैसे भी टेस्ट करने की कोशिश करते थे, कुछ ऑडियो की चीजें हमने ऐड कर दी है। ये वर्ड तुमने नहीं सुना है, अच्छा ठीक है, व्हाट वर्ड तुमने नहीं सुना है, सिलेक्टेड ऑन द स्क्रीन। तो दिस इज सम 19-20 थोड़ा बहुत खेला बढ़ा दिया। फॉर दोज ऑफ यू आर फ्रॉम बंगाल, खेला बढ़ा दिया। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। नाउ ओपैम, इट्स द असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। मैं कुछ चीजें चेक करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हारे पर्सनालिटी के कुछ एट्रीब्यूट्स को चेक करने की कोशिश कर रहा हूं। तो लोग बोल रहे हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज चेक हो रही है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज चेक हो रही है। बड़ी सारी भतेरी चीजें मैंने देखी, 70 अलग अलग अकेडमीज पता नहीं क्या क्या रील्स बना के डाल रहे हैं, क्या क्या यूट्यूब पे डाल रहे हैं। कुछ नहीं है यार, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इज जस्ट अ मेथड टू इंटरप्रेट योर पर्सनैलिटी एंड दे हैव शेड्स, 1 being the highest and 10 being the lowest. So let's say I have 15 officer-like qualities: effective intelligence, reasoning ability, organizing ability, power of expression. ये हमारा फैक्टर 1 है, तो इसका शेड नंबर 1 है, शेड नंबर 2 है, 3 है, ऐसे करते करते इसका शेड 10 है। तो मेरे को मालूम है, एज पर माई असेसमेंट या एज पर एक असेसर का असेसमेंट, एक जीटीओ, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एक साइकोलॉजिस्ट इज स्किल्ड इन पुटिंग सम टिक्स हियर। तुमको एक शेड देगा, वो तुम्हारा एक शेड का पैटर्न बनाएगा, देख के बताएगा कि हाँ यार, एज पर हिज परफॉर्मेंस एट द बोर्ड, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज का उसका ये एक शेड है, ये एक शेड कार्ड बना है भाई इसका, ये इसका पर्सनालिटी असेसमेंट है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज मेंट बाय ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। 8.3 billion people on earth, everybody has got officer like qualities, and everybody come, let's say hypothetically we say everybody appears for the SSB, we will have a shade card for everybody of them depending on their performance of the day. तो ये सारी चीजें हम तुम्हारी चेक कर रहे हैं, तुम्हारी अडेप्टेबिलिटी कोएफिशिएंट, कितना इनिशिएटिव है, कुछ करेज है क्या, डरता तो नहीं है, लीडरशिप ट्रेड्स, ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकता है क्या, बबली है क्या, लाइवली है क्या, कितना आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है, कितना थिंकिंग थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल्स है। अब ये सब चीजें मुझे तुम्हारी जांच पड़ताल करनी है, तो उसके लिए मेरे पास में बहुत सारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, अवेलेबल है। ये टेस्ट स्ट्रक्चर होता है, इट्स अ सेल्फ रिपोर्ट बेस्ड टेस्ट, क्विक रिस्पॉन्सेज आर रिक्वायर्ड बिकॉज द टाइम इज रनिंग आउट and we don't want you to think whatever is the first response that comes to your mind. Arya, please mute yourself. Have some heart. Arya, please mute yourself. Arya, please mute yourself. Okay. So if I
if I am, let's say, as an assessor or as any personality assessor, किसी के भी पास तुम चले जाओगे, कोई भी, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट एंड बहुत सारे यू नो साइकोलॉजिस्ट, दे ऑपरेट देयर, यू नो, सम सिविल शॉप्स। एमए इन साइकोलॉजी कर लिया, कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, कोई काउंसलर है, तो वो तुमसे ऐसी सेल्फ रिपोर्ट बेस्ड बहुत सारे टेस्ट करा सकता है टू फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। ठीक है, कराते हैं, मार्केट में होता है ये, कोई पहली बार नहीं होला। लीडरशिप ट्रेट का असेसमेंट हो रहा है, सीनियर लेवल पे लोगों को वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, डायरेक्टर बनाना है, बिग फोर्स में असेसमेंट हो रहा है, ये बुला रहे हैं बड़े बड़े लोगों को, भाई थोड़ा सा इनका लीडरशिप प्रोफाइलिंग करके बताओ, वेदर दे कैन टेक अप हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट इज देयर ओनरशिप, कितना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना इनका क्लीन थॉट प्रोसेस है, अनबायस्ड है कि नहीं है, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, करेज है डिसीजंस लेने का, डिफिकल्ट डिसीजंस लेने का। तो ये पर्सनैलिटी असेसमेंट आज नहीं हो रहा, सदियों से चल रहा है, तुम पहली बार कर रहे हो तुम्हारे लाइफ में कि हाँ एसएसबी जाना है, एसएसबी जाना है। तो नाउ दीज आर द क्वेश्चंस, दीज आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इतना टाइम है, तुम्हें क्विक रिस्पॉन्स वाई, जो तुम्हारे दिल में सबसे पहली चीज आई ना वो तुम्हें वहां पे टिक करनी है। ठीक है, लोगों ने बिटसेट दिया होगा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एसएटी, बिटसेट, ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट होते हैं, सेम वैसा ही है, कुछ चेक्स होंगे, कुछ रेडियो बटन होंगे जिसको तुम्हें टिक करना है, सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट स्क्रीन आएगा। जो चीज तुम्हें नहीं पता तुम उसको फ्लैग करके रख सकते हो, बुकमार्क करके रखो, वापस आओ, उसके बाद बिफोर द फाइनल सबमिशन इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर, दैट्स ऑल, नो रॉकेट साइंस यार। ये करने से कोई रॉकेट नहीं लॉन्च हो गया, एलॉन मस्क का कोई स्पेस एक्स का कोई रॉकेट नहीं लॉन्च कर दिया तुमने, इट्स जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन आंसर, सच्चे दिल से आंसर देना है, दैट्स ऑल। नाउ what are the kind of questions that you see? I speak truth even if it's difficult. Whether you strongly agree to it, you agree to it, are you neutral, are you disagreeing, or you strongly disagree? It shows me what kind of person you are. अब इसमें मॉडल आंसर क्या है वैसा नहीं सोचना है, जो तुम्हें लगता है वो तुम्हें देना है, ओरिजिनलिटी। फिर से ये मत करना स्टार्ट कर दो, मैंने अपने 4 साल के जीटीओइंग करियर में ये देखा है, जीटीओ को इंप्रेस करना है, इंटरव्यू ऑफिसर को इंप्रेस करना है, इसलिए मैं ऐसा आंसर दूंगा, इसलिए मैं ऐसे रिएक्ट करूंगी, इसलिए मैं जीटीओ ग्राउंड में ऐसे एक्ट करूंगी, और फिर तुम रिकमेंड नहीं होते। तुम्हें किसी को इंप्रेस नहीं करना है, तुम्हें अपना ओरिजिनल सेल्फ वहां पे बताना है, ऐसा है तो है, वैसा है तो है। एंड व्हेन यू गेट क्वेश्चनड ऑन समथिंग यू जस्ट हैव टू डिफेंड योर लॉजिक, इसी को एसएसबी बोलते हैं। नथिंग इज राइट एंड नथिंग इज रॉन्ग इन एसएसबी। दिस स्टेटमेंट इज एज मच ट्रू एज sun rises in the east and sun sets in the west. Take it from me. Whether you like it or not, खुला ये YouTube पे जाने वाला है, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, ये पटे तो ठीक, ना पटे तो भी ठीक, एक बोर्ड बना के आया हूं मैं, मेरी आत्मा को पता है, मेरे जहन को पता है सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, लोगों का धंधा हर्ट होगा इसलिए मैं कुछ अपने आप को टोन डाउन करके कुछ बोलूंगा, ये मैं करता नहीं, गलत मैं कुछ कर नहीं रहा, सीधा तुमको बता दूं। So you're gonna get some questions like this, and this is a 5-point rating scale बोलते हैं इसको, 5-point rating scale. There is nothing right and there is nothing wrong here. You may get questions to check whether you have lied in the past also. तो उसको lying tendency detection बोलते हैं। ये हर स्टैंडर्डाइज पर्सनालिटी टेस्ट में होता है, 16 PF, MBTI, बिग 5O, कि तुम्हारा लाइंग टेंडेंसी तो कुछ नहीं था कि तुमने कोई मॉडल आंसर दिया है। मैं लोगों के साथ में बहुत आसानी से घुल मिल जाता हूं, मैं किसी सोशल गैदरिंग में जाता हूं तो मेरे लोग जल्दी मेरे दोस्त बनते हैं। दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, एक जगह बोल रहे हो स्ट्रांगली एग्री, एक जगह बोल रहे हो स्ट्रांगली डिसएग्री, तो उसको कोरिलेट करने के लिए कोई दूसरे क्वेश्चंस भी होंगे इस पूरे लिस्ट में, तो पता चलेगा कि तुमने अपने आप के बारे में कितना सच बोला और कितना झूठ बोला है। तो वो चीज पता चलती है तुम्हारी जोहारी विंडो से। लिखना है तो लिख लो, आगे स्लाइड पे आएगा वैसे ये। So these are the kind of questions that you are going to get as a part of your OPAM. Now these are the CSSS questions. शेप 90 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये होगा। ये तो तुम अपने OIR में भी करते थे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं बदला, पेन पेपर को चेंज करके हमने बस कंप्यूटर पे ले आए, और ओपैम क्या है वो समझा रहा हूं तुमको। ये स्टैंडर्डाइज पर्सनालिटी टेस्ट है, आगे बताऊंगा अभी। ठीक है,
At a party, you interact with many people, including strangers or a few known people. Strongly agree, disagree, agree, neutral, disagree, strongly disagree. अब इसको लेकर के ऐसे ही मैं पैरेलल क्वेश्चंस भी बना सकता हूं. ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट में ये इनबिल्ट होता है. ये टेस्ट बनाने से पहले हम क्या करते हैं? टेस्ट बनाते हैं और उसके बाद चेक करते हैं टेस्ट की रिलायबिलिटी क्या है. How reliable the test is. What I want to figure out from a test when I'm designing a test, what is the reliability? कि if I impart this test जो मेरे को desired response चाहिए particular age group and particular educational background and several other things, इन लोगों से मुझे ये set of population से मुझे जो outcome चाहिए desired outcome वो इस टेस्ट से हो पाएगा क्या? तो वी चेक टू थिंग्स, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनी पर्सनालिटी टेस्ट. उस टेस्ट को डिजाइन करने से पहले, डिजाइन करने के बाद भी, करने से पहले भी ये सब चीजें डिफाइन होती है. दैट्स हाउ दे हैव प्रिपेयर्ड दीज क्वेश्चंस. ठीक है. अब मजे की बात है कि हाउ टू अटेम्प्ट, बी ऑनेस्ट, इंप्रूव सेल्फ अवेयरनेस. ये कैसे होगा ये मैं आगे बताता हूं. प्रैक्टिस लीडरशिप इन रियल लाइफ. इसके लिए तो तुम्हें एक्सपोजर चाहिए जहां पे तुम किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर उठा रहे हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में टेक फेस्ट है, उसको ऑर्गेनाइज करना है. हमारे कॉलेज में टेडेक्स है. अभी मैं कल टेडेक्स गया था, कल परसों में टेडेक्स में था 10 अप्रैल को. फॉर दोज ऑफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सारे बच्चे वॉलंटियर्स है. दे हैव टेकन सम और द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर हेड्स इन मेकिंग इट इवेंट अ ग्रैंड सक्सेस. वहीं पे तुम्हारी लीडरशिप ट्रेट्स निकल के आती है. लीडरशिप ट्रेट्स तब दिखती है तुम्हारी ओनरशिप, जब तुम्हारे ऊपर फेंकी जाए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और तुम उसको कैसे अदा करते हो, तुम उसको कैसे फुलफिल करते हो. ठीक है. स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट. नथिंग इज नो रॉकेट साइंस. You just have to stay calm and speak for yourself. Don't give model answers. Speak as in that is applicable for you. Original चीज. झूठ बोलोगे तो कटोगे. मॉडल आंसर्स देखिए अपने आप को एकदम 4 चांद लगे हुए हैं और 100 तारे लगे हुए, वैसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करोगे कि लव मी, लाइक मी एंड टेक मी इन. पक्का 1000% बाहर निकलोगे. दिस स्टेटमेंट इज अगेन एज ट्रू एज सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट, वेदर यू लाइक इट और नॉट. Coming out of my mouth, again telling this to you. I've made a board, so I exactly know what is going to happen there in the conference. Now, these are your common mistakes: overthinking, trying to fake personality, choose extreme options. Don't choose extreme. जो तुम्हें लगता है, जहां पे extreme लग रहा है वहां extreme बोलो, जहां नहीं लग रहा है मत बोलो. जो है सीधा है, सच बोलो. Basically, झूठ बोलना, मॉडल आंसर देना is your mistake. Now, what is this? Again, attempt the questionnaire with certain moral values and ethics. That's all. Now, these are the tips to prepare. These are all free tests. Write it down. भूल जाओगे नहीं तो. MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, 16 personality factors, Big 5O, Ocean Personality Test. इसके 2 versions है, long version and short version. Long version is 240 questions, short version is 60 questions. So Big 5O. The point is, ये दो तुमको 100% ऑनलाइन मिल जाएंगे. बिग 5 just check in case if you can do this free of cost. The point is, even if you get a report, you need someone to make you explain कि exactly इसका मतलब क्या है. And then तुम्हें कोई एक बंदा चाहिए जो तुम्हें ये बताए कि 15 OLQs का असेसमेंट कैसे होता है. तो तुम्हारी इन रिपोर्ट को वो तुम्हारे असेसमेंट से कंपेयर करे, मतलब तुम्हारे को बुलाए और तुम्हारा असेसमेंट करे और तुमने ये जो लिया है ये रिपोर्ट को पढ़े और तुम्हें देख के बताए कि बेटा तुम्हारे अंदर क्या कमी है. अभी जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं पता कर सकती हूँ क्या कि मैं फौज के लिए बनी हूँ कि नहीं बनी हूँ. somebody was asking this somebody who has been an ex-SSB assessor only will be able to tell you, and somebody who understands this both, which we have been doing since 4th July 2021. All my students have done this. All my students have done this. We have been doing this since 4th July 2021, the date of my retirement, my first batch. I knew this was coming. मैं तब से कर रहा हूँ ये, मुझे मालूम है. Plus I also have a master's in psychology. Now, this Johari window test is something which is going to tell you how much do you know about yourself.
This window, when you look at, it's got four quadrants. How much do you know about yourself and others know about you? How much do others know about yourself, but you don't know about that? Those things you don't know about yourself. Some things that you know about yourself and others don't know about those things about you, and some things which neither you nor others know about you. Right? तो अपना ओपन सेल्फ, अपना हिडन सेल्फ, XYZ, ये चार तुम्हारे क्वाड्रेंट्स बन के आते, लाइक अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये तुम्हारा जोहारी विंडो बन के आएगा, ये कि एक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद में ये तुम्हारा सेल्फ रियलाइजेशन, अपने इनसाइट, अपने आप को कितना जानते हो, ये उस चीज का टेस्ट है. वॉट एवर यू आर गोइंग टू सी इन ओपैम is something that you will see here. Something very, very similar that you are going to see here in these tests is something that happens in OPAM. I'm making a very bold statement. We have been doing this since July 2021. जब से ये I founded Integrated SSB Virtuosos, जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, तब से मेरे पहले स्टूडेंट से लेके आज तक, अभी जो करंट बैच चल रही है मेरी, all students have done this and then they get a feedback. एग्जैक्ट फीडबैक की कहां पे प्रॉब्लम है, क्या चीज को ठीक करना पड़ेगा, तब जाके रिकमेंडेशन होगा. या फिर तुम्हारा सेल्फ इनसाइट बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो फिर ये लास्ट स्टूडेंट परिहार के जैसे पीपल गेट रिकमेंडेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली. जिंदगी में पहली बार एसएसबी देने का रिकमेंड हो गया. नाउ व्हाट इज VTX? वर्चुअल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस. वी हैव अ ट्रेडमार्क ऑन दिस, बिल्ड टू प्रिपेयर नॉट कोच. Like जैसे Nike just do it, so this is built to prepare not coach. It's the GTO ground before the GTO ground. We have a trademark on this and we have also applied for a patent on this. Okay, it's India's first virtual GTO ground simulation designed to help you guys understand and practice the GTO tasks also. How the GTO tasks are designed. PGT कैसे डिजाइन होता है, HGT कैसे डिजाइन होता है, कमांड टास्क अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल्स के होते हैं. नो, कमांड टास्क अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स को लेकर के डिजाइन किए जाते हैं. कोई तुमको ये बोलता है कि ये डिफिकल्ट कमांड टास्क है, ये इजी कमांड टास्क है, ऐसे नहीं होता. पर्सनालिटी टाइप्स के हिसाब से कमांड टास्क होते हैं. ठीक है, whether you can agree with me, you don't agree with me, or you can go back to YouTube or Instagram or whatever and you can keep consuming that garbage and keep creating n number of myths in your brain and mind and let that play with your brain. But सच तो यही है. HGT का डिजाइन का एक डिजाइन प्रिंसिपल है, फाइनल ग्रुप टास्क का एक डिजाइन प्रिंसिपल है. ये सारी चीजें एक साथ अब भी तुमको विद इन 5 मिनट्स दिखाऊंगा मैं. ठीक है, सो बेसिकली इट सिमुलेट्स द एंटायर आउटडोर GTO ग्राउंड दैट यू सी on which the leadership assessment is carried out by a GTO. So me as a GTO, I can carry out your leadership assessment and entire SSB assessment on VTX. And I'll make one more bold statement. जिन लोगों को हमने बोला है कि तुम recommend हो जाओगे, me, Pankaj sir and the psychologists that we have, those people have gotten recommended. जिन लोगों को बोला है कि ये करने के बाद तुम रिकमेंड होगे, तो उन्होंने वो चीज की, उसके बाद ही रिकमेंड हुए, उसके पहले वो रिकमेंड नहीं हुए. और जिन लोगों को हमने बोला तुम कुछ भी कर लो, तुम रिकमेंड नहीं हो सकते, तो वो नहीं हुए हैं. ओके, नाउ यू गाइस वांट टू सी VTX? देखना है या खत्म कर दे बिना? Sir, Mahima has a doubt. She is saying that I read she that. always. I have read that. This is VTX. This is a complete end-to-end GTO ground. ये पूरा GTO ground है. ये कोई इंडिविजुअलिस्टिक टास्क को 3D में बना के डिजाइन करके इधर उधर नहीं रखा है. ये पूरा का पूरा एक GTO ग्राउंड है जिसको तुम VR में जाके अंदर स्टेप इन करके देख सकते हो. यू गाइस अंडरस्टैंड VR? हाउ मेनी ऑफ यू आर इंजीनियर्स? वर्चुअल रियलिटी पता है? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. Non-availability of land with me cannot be a stopping factor for me to coach for SSB. No, जमीन नहीं है मेरे पास में, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हूं मैं, कोई पेंशन नहीं है मेरे पास में, तो इसलिए मैं क्या बना नहीं सकता?
मैं बच्चे नहीं पढ़ा सकता, एसएसबी नहीं पढ़ा सकता। सीना ठोक के बोल सकता हूं कितने ही असेसर्स है दुनिया में, इंडिया में, और उसमें से कितने ही असेसर्स को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जाके एक नया बोर्ड बनाओ पूरा का पूरा। मैं तो उनमें से हूं। तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि कैसे क्या होगा। पर मैं जो डीआईपीआर की बोली हुई जो चीज है मैं वो नहीं बताऊंगा, वो है मेरे दिमाग में। मैं तुमको ये बताऊंगा कि तुमको क्या करना है और तुमको क्या नहीं करना है। तुमको जीटीओ नहीं बनना, तुमको एसएसबी में जाके अपने आप को रेकमेंड करवाना है, ट्रेनिंग एकेडमी जाना है, ट्रेनिंग करना है, ऑफिसर बनना है। 10-12 साल 15 साल की नौकरी करो, उसके बाद में डिसाइड करना कि तुमको जीटीओ बनना है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर बनना है कि साइकोलॉजिस्ट बनना है। और अगर तुमको एसएसबी मेंटर बनना है तो अपने आप बन जाओ एसएसबी मेंटर। बहुत लोगों ने दुकान खोल रखी है, खोल लो अपनी दुकान। तुम्हारा मुद्दा एकेडमी जाना है। अगर धंधा स्टार्ट करना है तो टेक अ डिफरेंट अप्रोच। अगर एकेडमी जाना है तो इट्स अ डिफरेंट अप्रोच। मैं तुमको वो बताऊंगा तुमको देख करके कि तुमको क्या करना है, इसीलिए ये बनाया मैंने। ये है पीजीटीज। आई गॉट 5 पीजीटीज। ऐसे ही दिखते हैं ना टास्क जब जाते हो वहां पे जीटीओ ग्राउंड पे। तो नाउ यू गाइस कैन स्टार्ट टॉकिंग, एनीबॉडी कैन टॉक। ऐसे ही दिखते हैं ना टास्क, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट? ऐसे ही देख के पता चलता है ना, ओ अच्छा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 3 फीट है। जो लोग रिपीटर्स है उन्हें पता है 4 फीट से कम का डिस्टेंस है तो डायरेक्टली जंप करके जा सकते हैं, राइट? तो ये जीटीओ ग्राउंड में तुमको हाइट्स, विड्थ, ब्रेड्थ, डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए एक स्केल भी अवेलेबल है। एंड यू कैन एग्जैक्टली सी कि कहां से कहां पे ग्रुप कैसे मूव होगा। ये एक जीटीओ बता सकता है, और कोई नहीं बता सकता। तुम कितनी कोई 3D टूल्स यूज करके कुछ भी बना लो, इसीलिए इसका पेटेंट रजिस्टर हुआ है। पेटेंट ऑफिस भी ऐसे ही पेटेंट रजिस्टर नहीं करेगा ना। अनपढ़ गवार लोग तो वो भी नहीं बैठे, तो वो लोग क्यों अलाउ कर रहे हैं पेटेंट का एप्लीकेशन, राइट? Yes, सो sir. इफ एनीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि क्या करना है, राइट? अभी सिंपल वाली चीजें दिखा रहा हूं तुम्हें, देख लो। यहाँ पे मैं प्लैंक रख दूंगा और यहां से बांध दूंगा, तो बंदा यहाँ चला जाएगा। क्यों जाएगा? कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 6 फीट, है ना? तो जमीन पे एग्जीक्यूट करने से पहले चीजें दिमाग में एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद ही जमीन पे एग्जीक्यूट होती है। तो हम क्या बोलते हैं? मनसा वाचा और कर्मणा। ये जो टेस्ट है तुम्हारा, ये कर्म तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारे मन में एग्जीक्यूट हो और बाद में तुमने बोल के बताया। इसलिए प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क तुम्हारा 3rd टास्क है। पहला क्यों नहीं है, दूसरा क्यों नहीं है, 7वां क्यों नहीं है? ये भी तो किसी ने सोच समझ के बनाया था। अगर जीटीओ बनना है तो मैं किताब का नाम बता देता हूं, द ग्रुप अप्रोच टू लीडरशिप टेस्टिंग बाय हैरिस हेनरी। पढ़ो, जीटीओ बन जाओगे। नहीं बन पाओगे जब तक प्रैक्टिकल असेसमेंट नहीं करोगे, तब तक जीटीओ नहीं बन पाओगे। थ्योरी तुम्हें बता दूंगा, पर उसमें लिखा हुआ नहीं है कि पीजीटी क्या होता है, ये क्या होता है, ये उस किताब में नहीं लिखा हुआ है। तो पीजीटी अगर होना है तो 3rd नंबर पे क्यों होता है, 1st नंबर पे क्यों नहीं होता, और 7th नंबर पे क्यों नहीं होता, और कमांड टास्क 8 टास्क की क्यों है? ये सब चीजों के बीच में कुछ थ्योरी है। देयर इज अ ग्रुप मूवमेंट दैट यू विल अंडरस्टैंड ऑन दिस जीटीओ ग्राउंड, इवन इफ यू डोंट हैव एन एक्सेस टू एनी फिजिकल जीटीओ ग्राउंड बाय एनी ट्रेनिंग एकेडमी इन द कंट्री, बाय एनी कोचिंग एकेडमी इन द कंट्री। बहुत सारे लोग हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उतना कॉस्टली, या अपना घर छोड़ के, या कोई वर्किंग कैंडिडेट्स है जो कंपनीज में इधर उधर कहीं काम कर रहे हैं, तो वो अपना नौकरी छोड़ के कहीं दूसरे शहर में जा नहीं सकते। ये जरूरी नहीं है उनके शहर में वो ऑथेंटिक जीटीओ ग्राउंड विद ऑथेंटिक मेंटर्स वहां पे हो ना। ऐसे तो क्लेम करने वाले बहुत लोग हैं हमारे पास जीटीओ ग्राउंड है, फिर तो लोगों ने छत पे भी बना रखे है जीटीओ ग्राउंड। तो माय पॉइंट इज वेरी सिंपल, जमीन पे एग्जीक्यूट करने से पहले तुम्हारे दिमाग में एग्जीक्यूट होना चाहिए। यही जीटीओ वहां बैठ के लिखता है। जीटीओ को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे हाथ में रस्सी है, फट्टा या बल्ली है। ये स्टेटमेंट उतना ही सच है जितना सनराइजेस इन द ईस्ट एंड सनसेट्स इन द वेस्ट सच है। ये मैं नहीं, इंडिया के सारे जीटीओ यही बोलेंगे। हमें नहीं फर्क पड़ता तुम्हारे हाथ में हेल्पिंग मटेरियल था या नहीं था, हमें नहीं फर्क पड़ता
तुम्हारे हाथ में रस्सी थी, फट्टा था, बल्ली थी, हमें दिमाग से मतलब है तुम्हारे। पता है क्यों? क्योंकि जब सामने से गोली चलेगी तो तुम यहाँ पे कैंटिलीवर नहीं बनाओगे, अरे रुक टेररिस्ट जरा मैं कैंटिलीवर बना रहा हूँ, ये नहीं करोगे तुम। ये करोगे क्या? और अगर सीआईसीटी में घुसने ही वाले हो, सबको यहाँ स्पेशल फोर्सेस में जाना है, पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस, कमांडो बनना है, फाइटर पायलट बनना Yes, है। sir. मान लो कि तुम वहां पहुंच गए, तो ऐसे ही कहीं ऑपरेशन में जा रहे हो तो मुंह उठा के ऐसे ही वहां पे चल जाओगे क्या? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग नाम की कोई चीज नहीं है क्या? जब स्टार्ट लाइन पे खड़े होते हो ना, वहां पे प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग हो रही होती है, वही चीज जीटीओ चेक करता है। उस चीज को देख के, तुम्हारे बिहेवियर मैनिफेस्टेशंस को स्टडी करके तुम क्या एक्शन ले रहे हो, उसके हिसाब से डिसाइड करना कि तुम वो मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल पे हो या नहीं हो कि जिसको मैं एकेडमी में भेज सकता हूं। इस चीज की तनख्वाह भारत सरकार उस जीटीओ को देती है, इसीलिए वो वहां पे जीटीओ बन के बैठा है। तो ये चीज को एक्सेप्ट कर लो और अपने जीवन के सारे भ्रम और सारे में तोड़ दो। तुम्हारे हाथ में रस्सी फट्टा बल्ली होना इंपॉर्टेंट नहीं है, जीटीओ तुम्हारा दिमाग देख रहा है, वो बार बार यही चीज देखता है और यही चीज नोट डाउन करता रहता है। उसके हाथ में कुछ तो होता है ना, देखा होगा ना जीडीजीपी में कुछ लिखता रहता है, ऐसे खोल के कुछ तो लिखता है, जीटीओ रिकॉर्डिंग शीट बोलते हैं उसको, यही चीज लिखता है वो, क्या बोला इसने, क्या निकला इसके मुंह से। आंखें भी बंद करूंगा ना मैं, तब भी मुझे पता है चेस्ट नंबर 3 ने बोला है, चेस्ट नंबर 7 ने बोला है। इसीलिए भारत सरकार ने जीटीओ बनाया मेरे को, और तनख्वाह भी दे रही है। डीआईपीआर ने सर्टिफाई किया है कि इसकी औकात है, ये जीटीओ वाला काम कर सकता है, हर कोई नहीं कर पाता। बहुत ही फेमस सेइंग है, जीटीओ का मतलब ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है यार। हम लोग बोलते हैं ज्ञान मत दो, ठेका मत लो, ओझल रहो, इसको जीटीओ बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा एक्सपोजर, कमांड टास्क। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स करना चाहते हो तुम? एसएसबी ग्रेड इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स इंडिया के किसी भी प्राइवेट एकेडमी में नहीं मिलेंगे। ये स्टेटमेंट उतना ही सच है जितना सनराइजेस इन द ईस्ट एंड सनसेट्स इन द वेस्ट है। तुम्हें अगर ये करना है ना, तो मैं तुमको एक बहुत सिंपल ज्ञान देता हूं। उस दिन खाना मत खाओ जिस दिन तुमने अपने बॉडी से पसीना नहीं बहाया। डोंट ईट फूड अगर तुमने पसीना नहीं बहाया है तो। इफ यू डोंट ट्रीट योर बॉडी लाइक टेम्पल, कि मैं दिन के 25 पुशअप्स कर सकता हूँ, 50 सेटअप्स कर सकता हूँ, मैं 2.4 किलोमीटर 9.5 मिनट में दौड़ लूंगा। सबके पास स्मार्टफोन होगा, उसमें बतेरे ऐप से अपने आप को टाइम करके देख लेना, सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हारा ये स्टैंडर्ड नहीं है ना कि 9.5 मिनट में 2.4 किलोमीटर में दौड़ सकता हूं, तो इस स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए जो कुछ भी तुम करोगे ना, वो चीज तुमसे ये इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स करवा लेगी, इंक्लूडिंग कमांडो वॉक। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट जीटीओ बोल रहा है। आज भी मैं फिट हूं, मेरे को पता है। चाहे तो कंपटीशन लगा लेते, कौन ज्यादा पुशअप्स लगाएगा। तो ये इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, ये है मॉरल ऑफ द स्टोरी। ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस तो है ही नहीं कहीं पे भी, ये तुम्हें सिर्फ एसएसबी में ही देखने मिलती है, ये सिर्फ तुम्हें एफएसबी में ही देखने मिलेगी, एनएसबी में ही देखने मिलेगी। ठीक है, एफजीटी, ये डिजाइन प्रिंसिपल है तुम्हारे, उसके हिसाब से डिजाइन होती है ये चीजें। Have you ever seen structure like this? सब कुछ ही ब्लू है। सब कुछ ही ब्लू है, जाओगे कैसे? ये है तुम्हारी स्टार्ट लाइन, ये है तुम्हारी फिनिश लाइन, जाओगे कैसे? सब कुछ तो ब्लू है। कोई सॉल्व करके बता सकता है इस चीज को? सर कहाँ फट्टा रखेंगे, कहाँ बल्ली रखेंगे?
चलो यहाँ फोकस करते हैं, यहीं पे देखो ये स्ट्रक्चर ध्यान से कैसे दिखता है। जो देख रहे हो सब लोहा है, एवरीथिंग इज आयरन, सब कुछ लोहा है, ठीक है। और ये है डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, तो यहां तक तो तुम डायरेक्टली आ जाओगे। 6 फीट का प्लैंक, 6 फीट का बल्ली और 2 रोप्स दूंगा 8-8 फीट की इस टास्क के लिए, एफजीटी है इसलिए। और एक चीज जिन लोगों को नहीं पता था, सारे टास्क के लिए इंडिया में जितने भी बोर्ड्स है, जितने भी टास्क है, सबके लिए कस्टमाइज्ड हेल्पिंग मटेरियल होता है, डिपेंडिंग अपॉन सरकार ने कितनी जमीन दी है और जीटीओ ने वो पर्टिकुलर टास्क कैसे डिजाइन किया है। तो जरूरी नहीं है कुछ कमांड टास्क में तुम्हें रस्सी नहीं मिलेगी, कुछ कमांड टास्क में तुम्हें रस्सी फट्टा और तुम्हें फट्टा बल्ली और तुम्हें ट्रायंगल देंगे लोहे का वेल्ड किया हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल, या फिर एक स्क्वायर दे देंगे, या एक रेक्टेंगल दे देंगे, या फिर एक चेन दे देंगे, या फिर इंफिनिटी दे देंगे, 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स को वेल्ड किया हुआ, या एक सर्कल दे देंगे, एक सर्कल विद डायमीटर दे देंगे लोहे का। जरूरी नहीं है कि तुम्हें रस्सी देंगे, ठीक है, ऐसा भी होता है। अब क्या तुम सारे कमांड टास्क, सारे पीजीटी, सारे एफजीटी रट्टा मार के जाओगे? आओ बच्चों आओ, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे बता रहा हूँ तुम्हें, मैं वो एसएसबी देने गया था फलाना बोर्ड में, वैसा टास्क वहां पे था, उसको ऐसे सॉल्व करते हैं। फिर बाद में पता चला वहां पे तो जीटीओ ने वो टास्क ही चेंज कर दिया, एग्जिस्ट ही नहीं करता, और तुम्हें कुछ एक गहरी गहरी नत्थु गहरी कोई चीज दिखा दी, वहां पे जाके तुम हो गए फ्रीज। फिर तुम बोलोगे सर मैं रेकमेंड क्यों नहीं हुआ? देखो तुम्हारे सामने है, कोई बता सकता है? बोलो अनम्यूट करके, दिखा रहा हूं तुम्हें, स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है, ये सब लोहा है जो दिख रहा है, एवरीथिंग इज लोहा, वॉट एवर इज रेड, वॉट एवर इज ब्लू, वॉट एवर इज व्हाइट। कैसे जाओगे यहां से आगे? Sir, I have an idea. और ये है तुम्हारे डिस्टेंसेस, यहां से लेके यहां तक डायरेक्ट ब्रिजिंग वैसे भी नहीं कर पाओगे क्योंकि नीला है। बोलो बेटा, यू हैव एन आइडिया? Yes, sir. Sir, क्या? firstly, बोलो। yes, so firstly we will put the plant at the middle and tie it up from the back side. कहाँ से टाई करूँ और कहाँ से क्या करूँ बताओ बेटा, समझ नहीं आ रहा मुझे, कहाँ मिडल में रखना है प्लान? Sir, place the plank in the middle vertically, like it's horizontal, so I placed it vertically, and from the back side I tied. डिस्टेंस I also have an idea. जाएगा, Yes, sir. डिस्टेंसेस ऐसे होंगे कि वो तुम कितना ही कर पाओगी, 7.2, 7.3, 7.4 फीट, distances are very huge. Okay, I'm not going to solve this. This is designed by me only, so obviously I know. इसकी हाइट भी देखो, 3-3 फीट, 3.5 फीट, 3 फीट हाइट बहुत ज्यादा होती है। Yes. 2 फीट है तो ठीक है, जैसे ही मैं इसको 3 फीट बना दूंगा ना, तो स्ट्रेस जो है वो टू द पावर ऑफ 2 में मल्टीप्लाई करता है, मल्टीफोल्ड करता है। एनीवे, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस ऑन दिस वेबिनार, डिजाइन बाय मी, आई एग्जैक्टली नो क्या करना है क्या नहीं करना है, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि ऐसे ही स्ट्रक्चर्स दिखते हैं ना तुम्हें जीटीओ ग्राउंड पे, ऐसे ही कुछ होते हैं ना स्ट्रक्चर्स, Yes, sir. राइट? ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, ऐसे ही जीटीओ ग्राउंड पे दिखता है, राइट? There's a very famous island called as James Bond Island. How many of you know about it? Has anyone heard? The James Bond Island, one of the movies was shot. It's in the Thailand archipelago. Nobody knows that. You have not heard about it. Have you heard about a place called as Maya Bay? No. James Bond Island, Maya Bay, नहीं पता. I call this as NKC Island. भाई मैं नेवल ऑफिसर हूँ, समंदर से प्यार है मुझे, माई फीट आर सॉल्टी, तो मेरा जीटीओ ग्राउंड बीच पे ही होगा, आइलैंड पे होगा, दैट्स व्हाई इट इज लाइक दिस। एनीवे, सो दिस वाज VTX. I've got 250 plus tasks here, 250 plus structures. Tejas Nagari is sending a red heart.
ओके, इट इज नॉट सम 3D स्ट्रक्चर बना दिए, पूरा का पूरा फुल्ली फंक्शनल जीटीओ ग्राउंड है। वर्चुअल रियलिटी में घुस के अंदर, इसके अंदर घुस के तुम उसको एक्चुअली देख सकते हो और एक्चुअली तुम ये टास्क अटेम्प्ट कर सकते हो वीआर में घुस के, एक्चुअली अपने घर पे बैठ के। तो लोग जो जीटीओ ग्राउंड तक जा नहीं पाते, उन्हें ऐसा लगता है कि ये XYZ फलाना एकेडमी में जीटीओ ग्राउंड है तो मैं वहां जाके पढ़ूंगा, लेकिन काम कर रहे हैं या फिर अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर उनका घर बहुत दूर है, जगह कहीं और है, तो मैं जीटीओ ग्राउंड लेकर के ही तुम्हारे पास में आया। और वीआर में जाने की वैसे जरूरत भी नहीं है, तुम्हारे फोन, तुम्हारे लैपटॉप, तुम्हारे टैबलेट पे तुम्हें दिख के समझ में आ जाएगा। ये उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, इसको VTX बोलते हैं। सो एनीवे, दिस इज VTX। ठीक है, वी हैव सर्टेन थिंग्स, लेट्स सी इफ यू कैन सुन पाओगे क्या? Jai Hind everyone, I'm Ritik. I wanted to express my sincere gratitude for the incredible mentorship I have received from SSB ISV, particularly regarding the GTO task on their V2X platform. When I first stepped onto the GTO platform, GTO ground, I was completely overwhelmed. I thought it was all about brute physical strength, running fast, and was forcing my way through the obstacles. But the teaching and the mentorship from Nikhil Chandrakala sir has completely changed the game for me. He really has shown us how to bridge a gap with a plank, balli, or how to tie a knot. He taught us the actual logic behind the structures, breaking down the importance and the significance of each element. After tackling the highly difficult custom obstacles which he designed himself, I gained immense confidence. In fact, the obstacles on the real SSB ground felt easy in comparison, to be honest. I quickly learned that the GTO series isn't just a physical strength, but it is a test of practical intelligence and your character. This wasn't just a coaching, it was a complete masterclass in leadership, teamwork, and decision making under pressure. Massive respect to Nikhil Chandrakala sir. Thank you for not only simplifying the complex structures, complex concept, but also for giving us so much clarity and confidence. You made the difficult task feel so logical, feel so easy, and eventually effortless. Now to all my friends who are preparing for the SSB, this is the kind of mentorship that builds an officer. Not just for the armed forces, but for the life as well. Go and try it yourself. ऐसे बहुत है। Then we have these guys also. Were you able to hear what I played? Yes, sir. Okay. Yes, sir. और Yes, sir. भी है। Hi everyone, Tejveer this side. Recently, Why is this guy missing? क्या हुआ? hi everyone, Tejveer this side. Recently through Instagram, I came to know about an unparalleled initiative taken by Nikhil sir, which is named as Virtual Training Experiences. I was also having various doubts regarding PGT and GTO, but once I have contacted Nikhil sir's team and I have conducted his virtual training experiences, my doubts have been cleared and I have got a fixed and focused vision regarding the PGTs and other tasks of GTO. So if you are also facing some issues or are struggling in your GTO task, I will suggest you as a serious defense aspirant, you must contact Nikhil sir for his guidance. He will be guiding you throughout with a snap of fingers. इसने भी कुछ बोला है, ये तो पता ही नहीं मुझे। Hello, this is Rishikesh, ISVL batch 58. So I wanted to share about the VTX experience that I had. VTX gives me the clarity to do the basic things right, and it also helps me understand what GTO is exactly looking for. The minute details which you have to take care, and also how to do the basic cantilever and all the things which are required to be able to do well on the GTO road is being imparted very well by the means of VTX. I don't think that there is a need of physical GTO ground after seeing this. It is very much helpful, and I feel lot more confident after learning through VTX. Thank you, Nikhil sir. ये बैच 58 के लोग हैं, अभी 62 चल रहे हैं, अभी रिसेंट के लोग हैं ये सारे। These are all our previously recommended guys। मतलब ये है वो बंदा, he is the guy, you know।
कहाँ कहाँ जाके ट्रेनिंग वेनिंग लेकर के आया, नाउ इज मरूंड. दिस गाय अगेन पता नहीं कहाँ कहाँ जाके ट्रेनिंग लेके आया. बैक टू बैक आर्मी नेवी एयरफोर्स रिकमेंडेड, एयरफोर्स रिकमेंडेड, back to back recommendations. Tuck, 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 tuck. Okay, so now let's take some few questions and then we can call it a day. बोलो क्या questions है तुम्हारे? chat box में type करो and Randeep please tell me. Yes, sir. Jatin has a question that he is saying that he is having 22 attempts, and every time SSS expectations are increasing. One of his mock असेसर एक्सपेक्टेशंस तुझे कैसे पता है जतिन? तू असेसर है क्या? तू कभी असेसर बना है क्या? DIPR गया है तू? आर यू क्वालिफाइड असेसर? देन व्हाई डू यू से दैट कि असेसर की एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज हो रही है? इट्स अ वेरी रॉन्ग अप्रोच. अप्रोच यही है. ये क्या है? व्हाट इज दिस? दैट्स व्हाई यूजुअली कीप मी इन 85 to 89 मार्क रेंज एंड विल चेक व्हाट अदर असेसर्स ब्रिंग ऑन बोर्ड इन द कॉन्फ्रेंस. 85 to 89 मार्क्स कोई असेसर देता नहीं है इन द हिस्ट्री ऑफ SSB. जब से ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज वाला सिस्टम आया है, 85-89 मार्क्स कोई देता नहीं है. जिसने भी तुझे मार्किंग स्कीम पढ़ाई है, आई थिंक यू शुड गो एंड आस्क हिम ओनली. आई एम द रॉन्ग पर्सन टू गाइड यू. आई एम रियली सॉरी. इफ यू हैव टू जस्टिफाई योर 22 अटेम्प्ट्स, यू जस्ट हैव टू गो एंड टेल देम कि तेरा सेल्फ इनसाइट कितना बड़ा है. How much has your self insight increased over a period? Because it is one of your trainability factors. Now, what is the next question? Himanshu wants to join our batch. Yeah, whosoever wants to join, just write down the numbers and connect. सब बता देंगे अभी नेक्स्ट बैच कब कहाँ से क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. तो ये is there any difference in the assessment approach for JAG candidates compared to other entries, and especially in terms of legal aptitude and decision making? No, we are not checking your legal aptitude, we are checking your personality. SSB assessment remains the same for everybody. The difference comes only in trainability, which I cannot talk on this webinar. It takes me about 2 hours to explain what is trainability and potentiality. Sir, I want to join your batch. Please come. Sir, what clothes and shoes to carry? अथर्व काले, please check your call up letter. वहाँ डिटेल में लिखा होता है क्या कपड़े चाहिए, क्या नहीं चाहिए. And you are going to ask for a job. अगर अपने कॉलेज में थे तो तुम्हें पता होना चाहिए प्लीज कि तुम अपने कैंपस प्लेसमेंट में अगर बैठते हो तो कैसे कपड़े पहन के बैठते हो. प्रॉपर आयरन क्लोथ्स, शूज पॉलिश्ड, टाई वाई पहन के जाओगे, बैठोगे वहां पे. सेम चीज SSB में. भूखे नंगे फटे कपड़े पहन के मत चले जाना. बी प्रॉपरली ग्रूम, शेव, हेयर कट, बेसिक चीजें है, इसको सिखाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. व्हाट इज दिस? आई कांट आंसर दिस क्वेश्चन ऋषभ. I cannot answer this. I got conference out this. I'm motivating according to the main things I should focus now. I really don't know. By the way, one more thing, guys. Your SSB preparation is disjoint from your written exam preparation. मैं SSB के लिए रिटर्न एग्जाम के बाद में प्रिपेयर करूंगा, ये बहुत गलत अप्रोच है. क्योंकि अगर तुम्हारी कोई शॉर्टकमिंग्स आई तो उसको भरने के लिए तुम्हें कुछ समय चाहिए. अपने पर्सनालिटी में कुछ चेंज को लाने के लिए, कोई चेंज को इफेक्चुएट करने के लिए तुम्हें कुछ समय चाहिए. तो यू रियली नीड टू एक्चुअली गिव इट सम टाइम एंड यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड कि कहाँ पे प्रॉब्लम है. ये चीज हम लोग अपनी बैच में करते हैं. ठीक है. व्हाट इज CSET? क्या लिखा है? कुछ टाइपिंग में एरर है क्या? नॉर्मल SSB एंड SSB, व्हाट इज दिस? बलादित्य दास, पता नहीं क्या लिखा है. Sir, I might be thinking he is talking about Coast Guard SSB. कोस्ट गार्ड, CGS टेक्निकल एंट्री. नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है यार. SSB सबके लिए सेम होता है. फर्क सिर्फ ट्रेनेबिलिटी और पोटेंशियलिटी में आता है. ट्रेनेबिलिटी में प्राइमरीली फर्क आता है. तो वो चीज मैं तुमको ये वेबिनार पे नहीं समझा सकता. उसके लिए मेरे को 2-3 घंटे चाहिए समझाने के लिए. I can't explain this. You guys are most welcome to join the batch and then understand exactly what is SSB. And then we carry out the entire assessment also. इंटरव्यूइंग ऑफिसर मॉक इंटरव्यू भी करते हैं, पढ़ाते भी है PIQ फॉर्म कैसे भरना है. साइकोलॉजिस्ट सारे टेस्ट के बारे में समझाने के बाद में तुम्हारा टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे. उसके बाद तुमको फीडबैक भी देंगे. उसके बाद मेरे साथ तो तुम VTX पे आओगे, फिर एक कंबाइंड फीडबैक भी देंगे. ठीक है. वॉट एवर इज योर कॉल अप अक्षय कुमार. There is nothing like an old and new. That's what I told. ये पूरा का पूरा चीज I told you what do you have to do. And whether this was there or not, we still have been doing this since July 2021.
all these questionnaires and comparisons and assessment and feedback. We've been doing this since 2021. If you guys really want to do that, you guys are most welcome to join the class also. Okay. Sir, we have a doubt of Anand that he is telling us that CSS and OPAM assessment score also. I answered that only. Anand का ही आंसर किया है मैंने ये. ठीक है. Arya, I don't will batch also cover developing communication skills? Yes, to a certain extent, yes. But if you're asking me कि अंग्रेजी पढ़ा दो तो वो नहीं पढ़ाएंगे. That you should have learned until now. But थोड़ा communication skills पे touch करते हैं. There is nothing like an improvement in psych or something. Mr. Jayant Singh, whosoever you are, either you're there or you're not there. And कमियां क्या है वो देख करके ही समझ में आएगा कि तुमको क्या करना है. Because one shoe doesn't fit all. जो जूता मैं पहनता हूँ जरूरी नहीं है वो तुम्हें फिट होगा. जयंत सिंह, हाउ टू इम्प्रूव साइक? हाउ डू यू नो वेयर डू यू नीड इम्प्रूवमेंट? जब तक असेसमेंट करके बताएंगे नहीं कि यहाँ पे कमी है तब तक तुम क्या इम्प्रूव कर लोगे? Sir, after getting multiple, like I am confused to coaching, but after that also not getting things. Then join our class, हर्षवर्धन सिंह. तेरे जैसे बहुत आते हैं हमारी क्लास में. ये जगह से कोचिंग ली उन्होंने ये बोला था, वो जगह से कोचिंग ली उन्होंने ये बोला था. तो ऐसे बहुत आते हैं मेरे पास हर्षवर्धन. एनडीए पता नहीं क्या लिखा है. सर आई कुड नॉट एबल टू क्लियर एनडीए रिटर्न. विच अप्रोच आई नीड टू? आई रियली डोंट नो. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अंग्रेजी ठीक करे यार अपनी. ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बहुत सारी चीजें लिख रहा है. चरिता, was that a question or a statement for others? I don't know. So Jatin has a doubt here. If a candidate is a board repeater, does it affect the marking scheme of his board? No, if you are a board repeater, then different set of assessors assess you, and they have no bearing or they do not know what the old assessors have spoken about you. Okay. Charita, whatever is there ना, if it is going to be implemented countrywide, तो वो तुम्हारे notifications में लिख के आ जाएगा कि this is what's going to happen. In fact, जो current notifications है उसके अंदर भी explain किया होता है कि SSB है क्या. ठीक है. Okay, that's all. Now practical tips. ये basically चीजें है. Over confidence मत दिखाओ please. To the point बोलो. फिजिकल एक्सरसाइज को निगलेक्ट मत करो. ये मैंने तुमको बता दिया अभी कि क्या स्टैंडर्ड्स चाहिए. Sir, Swapnil is having a doubt. He is going through the direct entries only. Whether clearing not written exams, does it impact on the SSB evaluations? No, it does not impact. It does not impact. अब मेरे को न्यूज रीडर नहीं चाहिए. ओके, रिमेंबर दिस. करंट अफेयर्स का मतलब होता है कि मुझे कोई न्यूज रीडर नहीं चाहिए. आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ न्यूज रीडर. सी व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज I want opinion, but I also don't want judgment. ठीक है, I want opinion, I don't want judgment, and I definitely don't want news readers there. तो इसको फॉर्म होने में बहुत टाइम लगता है. ठीक है. Poor communication skills, yeah, we can tell you how to communicate exactly. थोड़ा बहुत soft skills पे ट्रेनिंग कर देंगे, बहुत सारी चीजें सिखा देंगे, बता देंगे तुम्हें in the class. बट इंग्लिश नहीं सिखाएंगे. ठीक है. ये फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फीडबैक तुम्हें एक ऑथेंटिक सोर्स से मिलना चाहिए, तब जाके ही इंप्रूवमेंट होता है. दिस इज द कैंडिड इक्वेशन दैट वी फॉलो फॉर रिकमेंडेशन. यू आर असेस्ड ऑन योर प्रेजेंट लेवल, वी एड ट्रेनेबिलिटी टू इट, एंड देन वेदर आर यू गोइंग टू रीच एवरेज पोटेंशियल ऑफिसर लेवल आफ्टर योर पासिंग आउट पीरियड और नॉट. ये इक्वेशन बैलेंस होगा या LHS ग्रेटर देन RHS होगा तभी रिकमेंड होगी. और यही चीज पे हम कोच करते हैं इंटीग्रेटेड SSB वर्चुओसोस, क्योंकि यही असेसमेंट का तरीका है SSB का. ये वही बता सकता है जिसने बोर्ड बनाया है. ठीक है. We'll find out this gap between your present level and the minimum acceptable level, and we'll give you feedback so that you can improve on yourself as early as possible, irrespective of your written exams, because improvement takes time. उम्र के साथ साथ पर्सनालिटी में rigidity index बढ़ता है, तो improvement takes time. डूज अर्ली, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है. स्टे अपडेटेड. इसके लिए रीडिंग हैबिट चाहिए ओपिनियंस फॉर्म करने के लिए. न्यूज रीडर नहीं चाहिए.
Then communication skills, like somebody was asking, there is a method in which you communicate. How you speak matters more than what you speak, even if your what has got very good opinions also. तो ये how क्या है, ये चीज हम बताते हैं क्लास के अंदर. Physical fitness, I told you the standards. Group discussions is the same thing that you would be doing in your schools or colleges over a cup of tea or coffee, or in some common area on some topic of common interest with your friends or family members. This is the group discussion that we're talking about. Not कि एसएसबी वाला ग्रुप डिस्कशन कुछ कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हें एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि एसएसबी के टॉपिक्स बनते कैसे, वो भी हम क्लास में बताएंगे. पब्लिक स्पीकिंग ये थोड़ा सा चाहिए, कुछ नहीं तो अपने मिरर के सामने खड़े होकर बोलो, 1000 जगह से सुना होगा तुम लोगों ने. कुछ नहीं, किसी भी चीज से बात करो. मेरा कुत्ता, मेरी गाय, मेरा खेत, मेरा कॉलेज, मेरा फेवरेट टीचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, स्पेस ट्रैवल, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ईरान वॉर, दिस वॉर, दैट वॉर, कोई भी एक टॉपिक उठाओ और बोलना स्टार्ट करो. ये चीज कोई एक DIPS सर्टिफाइड इंटरव्यूइंग ऑफिसर लेके तुम्हें फीडबैक दे, और वो फीडबैक GTO और साइकोलॉजिस्ट के फीडबैक के साथ कोरिलेटेड होना चाहिए, जो कि हम ISP में करते आ रहे हैं पिछले 5 साल से. दिस इज व्हाट वी डू. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसका डेमो मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ VTX पे कैसे होता है. एंड द बेस्ट थिंग इज, एक बार तुमने पढ़ लिया तो यू कैन कीप रिपीटिंग और यू कैन कीप कमिंग बैक टू द क्लासेस एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एज यू वांट, until you get recommended or until you yourself do not decide कि अब मुझे I don't want to pursue career in the armed forces. So you can keep repeating our sessions, you can keep coming back to us as many times as you can. ठीक है. Yeah. Also, 22nd April को again we are conducting a webinar again at the same time, where we are going to talk about the interview, and interviewing officer is going to host this webinar. So you guys, Neeraj, Neeraj, please unmute yourself. okay. So we are going to talk about the interview process, क्या है क्या नहीं है, आजकल क्या पूछते क्या नहीं पूछते, और तुम्हारे PIQ फॉर्म के हिसाब से तुम्हें क्या करना है. तो उसके लिए अगेन छोटा मोटा एक थोड़ा सा छोटा सेशन माइनर वी आर होस्टिंग ऑन 22nd April. उसके डिटेल्स हम लोग बाद में शेयर कर देंगे. आफ्टर दिस वेबिनार वी आर गोइंग टू शेयर द डिटेल्स. यू गाइस आर फ्री टू कम टू दैट वेबिनार आल्सो. These are our next batches. People who are interested to join the batches. 16th April, 26th, 6th May, 16th May, and so on. We are going to have a lot of batches every 10 days, because SSB Hackathon happens for 10 days. Details you can find on this website also. This website, these are the numbers, this is the email address. Yes. SSC वाले बच्चे भी आ सकते हैं क्या? कोई भी आ सकता है यार. दिस SSB coaching is open for 10+2 entries, all kinds, NDA, TES, 10+2 BTech entry, Navy, direct entries without written exam, SSC Tech, non-tech, TGC, whatever XYZ, या फिर short service commission entries for the Navy, direct entry, XYZ number of branches, pilot, naval air operations, logistics, JAG, air traffic control, education, law, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जनरल सर्विस, या फिर सर्विस एंट्री वाले SD लिस्ट, PCSL, ACC एंट्री, या फिर CW स्कीम वाले, या फिर CDSC एंट्री, NDA एंट्री, कोई भी आता है. SSB रिमेन्स द सेम, सिर्फ ट्रेनेबिलिटी में फर्क पड़ता है गाइस. एंड वी हैव बीन कोचिंग ऑल एंट्रीज फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. That's it guys, and you can also join our Telegram channel.